Hello, my dear students. This is Ecology Environment Marathon sessions. As you all of you know, that we are done with the 7 Ecology Environment Biodiversity Marathon sessions, and this is 8th one. And हर सेशन में हमने एक टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं. और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, राइट. तो एज ऑल ऑफ यू नो, हमने वाइल्ड लाइफ जो है सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में किया, ओजोन लेयर के बारे में किया, ग्रीन हाउस गैसेस पे किया, दिस इक्वालिटी पे किया. सो आज का जो टॉपिक है वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. सो दीज MCQs आर रिलेटेड टू दैट टॉपिक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, question number 1 is on your screen. Among the following energy sources, which one is used maximum in organic form? Option A, nuclear energy. Option B, solar energy. Option C, geothermal energy. And option D, tidal energy. सबसे ज़्यादा किसको यूज़ किया जाता है in organic form? And yes, the right answer is option B, solar energy. Solar energy is drawn from which of the following? Moon, ocean, sun, the wind. Obviously it's very easy. Solar energy is drawn from option C, sun, the ultimate source. Okay, which of the following is the largest storehouse of alternative energy? Solar energy, tidal energy, nuclear energy, geothermal energy. And yes, the right answer is option A, solar energy. Which one of the following is a renewable source of energy? इनमें से कौन सा renewable source of energy है? कोल, न्यूक्लियर एनर्जी, पेट्रोल, सोलर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि जो ख़त्म नहीं होती है. तो कोल, न्यूक्लियर एनर्जी एंड पेट्रोल दे आर नॉट रिन्यूएबल. एंड यस, ऑप्शन डी, सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल एनर्जी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम. And yes, the right answer is option D, uranium. Which of the following energy source is most eco-friendly? सबसे ज़्यादा eco-friendly कौन है? Environmental friendly. Petroleum product, forest product, nuclear fission, solar cell. And yes, the right answer is option D, solar cell. Which one of the following fuels creates the least pollution? Diesel, coal, hydrogen, kerosene. इनमें से कौन सा fuel सबसे कम pollution create करता है? And yes, the right answer is option C, hydrogen. Which form of energy does not create environmental issue? Coal, nuclear, petrol, solar. कोई environment issue जिससे नहीं होता है, environmental hazard जो नहीं होगा, किससे नहीं होगा? ऑप्शन डी, सोलर एनर्जी से नहीं होगा. Which one of the following is the best source of generating electricity in India from the viewpoint of sustainable development? Coal, mineral oil and gas, hydroelectricity, atomic energy. Best source of generating electricity in India. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के व्यू पॉइंट से कौन सा है बेस्ट सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. What is meant by energy crisis? Shortage of hydroelectricity, malnutrition leading to a short supply of energy in the body, shortage of thermal power, the danger of extinction of fossil fuels like coal and petrol. एनर्जी क्राइसिस का मतलब क्या होता है? क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज होना, या बॉडी में एनर्जी शॉर्ट होना, या शॉर्टेज ऑफ थर्मल पावर, या डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ कि सॉलिड जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है वो ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कोल है, पेट्रोल है. किसको हम एनर्जी क्राइसिस बोलते हैं? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोल. Which of the following statements about biofuel is not correct? Biofuel is eco-friendly, biofuel is cost-effective, biofuel can contribute to remedy energy crisis, biofuel is also made from corn. So यहाँ पे अगर हम appropriate आंसर देखेंगे तो obviously biofuel जो होता है ना, इसलिए फ्यूल के साथ बायो है तो लिविंग इससे ही हम निकालते हैं, वो ये eco-friendly होता है. हमारे डिफरेंट बायोफ्यूल्स होते हैं और बायोफ्यूल एक रेमेडी है एनर्जी क्राइसिस के लिए भी. और कॉर्न से भी हम बना सकते हैं, एल्गे से भी, राइट, और शुगर केन का जो वो होता है उससे भी. एंड यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है बायोफ्यूल इज़ कॉस्ट इफेक्टिव. इससे थोड़ा सा जो है कॉस्टली ये बनता है, बट यस बाकी तीन जो है सही है.
Which one of the following source of renewable energy has greatest potential in India? Solar power, biomass power, small hydel power, energy recovery from waste. इंडिया में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किससे है? एंड यस सोलर पावर. तो इसलिए इंडियन सोलर अलायंस स्टार्ट की गई है, इंडियन सोलर अलायंस, राइट. इसका जो हेडक्वार्टर है इंडियन सोलर अलायंस का, ये कब बनाया गया, किस कन्वेंशन के टाइम पे, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, आप ये कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ ग्रीन फ्यूल? पाइन, कार्नेज, फर्न, ऑल ऑफ दीज. Source of green fuel, and yes, the right answer is option D, all of these. Which one of the following is a biodiesel crop? Cotton, sugarcane, jatropha, potato. बायोडीजल क्रॉप इनमें से कौन सा है? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जट्रोपा. Under the nuclear power projects, environmental effects that have to be studied and resolved are. Under the nuclear power projects, environmental effects that have to be studied and resolved are radioactive contamination of एयर, सॉइल एंड वाटर. क्या इससे रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन होगी एयर की, सॉइल की, वाटर की? डिफॉरेस्टेशन और फ्लोरा और फोना लॉस हो जाएगा क्या? रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल के बारे में हमें सोचना पड़ेगा. ऑल ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ऑब्वियसली जब आप न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए आप अप्रूवल मिलता है या आपको अप्रूवल देना होता है, आप पहले ये देखते हैं कि रेडियो एक्टिव जो पोल्यूशन है, कंटेमिनेशन है, वो कहाँ कहाँ को जाएगी, डिफॉरेस्टेशन कितनी होगी, हमें कितने पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे, लॉस ऑफ फ्लोरा और फोरा कितना होगा, और रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल के बारे में भी सोचना पड़ता है. गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ 4 एनर्जी क्रॉप्स, विच वन ऑफ देम कैन बी कल्टिवेटेड फॉर इथेनॉल. इथेनॉल में कौन सा यूज होता है? जट्रोफा, मेज, पोंगेमिया एंड सनफ्लावर. इथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रोग्राम के बारे में आपने पढ़ा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है. एंड यस, राइट आंसर हियर इज मेज, राइट. Biomass gasification is considered to be one of the sustainable solutions to the power crisis in India. In this context, which of the following statements are correct? Coconut shells, groundnut shells, and rice husk can be used in biomass gasification. The combustible gases generated from biomass gasification consist of hydrogen and carbon dioxide only. The combustible gases generated from biomass gasification can be used for direct heat generation but not in internal combustion engines. Select the correct answer using the codes given below. Only 1, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. बायोमास गैसिफिकेशन के रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं. सो द राइट आंसर हियर इज ओनली 1. Coconut shells, groundnut shells and rice husk can be used in biomass gasification. Okay. Which of the following renewable power resources had highest installed capacity in the country? Biomass power, solar power, waste to energy, wind energy. हमारी कंट्री इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किसकी है? विंड एनर्जी. Concerning fuel cells in which hydrogen-rich fuel and oxygen are used to generate electricity, consider the following statements. If pure hydrogen is used as fuel, the fuel cell emits heat and water as a byproduct. If fuel cells can be used for powering buildings and not for small devices like laptop, computers, fuel cells produce electricity in form of alternating current, AC. तो फ्यूल सेल्स के रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स देखिए, आपको बोलना है सही कौन सा है इनमें से. विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओनली 1, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. एंड यस, द राइट आंसर इज ओनली 1. The International Solar Alliance was launched at the United Nations Climate Change Conference in 2015. The alliance includes all the member countries of the United Nations, जो कि मैंने आपको अभी बोला था. ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो है, क्या है, हमने 2015 में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में ये लॉन्च किया, और इसमें क्या सारे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स इसके मेंबर्स हैं. ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉट 2. चूज द राइट आंसर, एंड यस, द राइट आंसर इज ओनली 1. इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो पेरिस क्लाइमेट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2015 में, वहाँ पे लॉन्च किया गया, और इंडिया का बहुत बड़ा रोल था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है. एंड
Option only 1 is the right answer here. Microbial fuel cells are considered as source of sustainable energy. Why? क्यों इनको source of sustainable energy माना जाता है microbial fuel cells को? These use living organisms as catalysts to generate electricity from certain substrates. They use a variety of inorganic materials such as substrates. They can be installed in wastewater treatment plants to cleanse water and produce electricity. तो करेक्ट कौन है? ओनली 1, 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2 and 3. So 1 and 3 is the right answer. They use living organisms as catalysts to generate electricity from certain substrates. They use a variety of inorganic materials as substrates. ये सही नहीं है. They can be installed in wastewater treatment plants to clean water and produce electricity. ठीक है, माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स की बात हो रही थी यहाँ पे. So 1 and 3 is the right answer. Coal-based thermal power stations contribute to acid rain. Oxides of carbon are emitted when coal burns. तो इसमें रीजन और assertion है. इसमें क्या सही आंसर होगा? Coal-based thermal power stations contribute to acid rain. This is correct. Oxides of carbon are emitted when coal burns. ये भी correct है. But R is not the reason for A. क्योंकि एसिड रेन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर डाइऑक्साइड से होता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन इंडिया, सोलर एनर्जी कैन बी कन्वीनियंटली यूज्ड टू सप्लाई हॉट वाटर टू रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, सप्लाई वाटर फॉर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, प्रोवाइड स्ट्रीट लाइटिंग, इलेक्ट्रीफाई अ क्लस्टर ऑफ विलेज एंड स्मॉल टाउन्स. सोलर एनर्जी को हम कन्वीनियंटली यूज किसके लिए कर सकते हैं? 1, 2, 3 and 4 are correct. 2 and 4 are correct. 1 and 3 are correct. 1, 2, 3 are correct. And yes, the right answer is 1, 2 and 3 are correct. हम उसको रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए हॉट वाटर सप्लाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स. मैंने आपको बोला जो है एल्गी इस्तेमाल हम करते हैं, सड़े हुए फूड्स को भी इस्तेमाल किया जाता है. बट व्हाट आर द लाइकली लिमिटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन प्रमोटिंग दिस इंडस्ट्री? बायोफ्यूल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए लिमिटेशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट्स. सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज टेक्नोलॉजी until the construction is completed. Economically viable production necessitates the setting up of large scale facilities which may raise ecological and social concerns. So the right answer here is only 1 and 2, only 2 and 3, only 3, 1, 2 and 3. And yes, the right answer is only 2 and 3. ये नहीं है कि प्रोडक्शन अगर हमें एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स बनाने हैं तो हमें सीज में ही पॉसिबल होगा. लेकिन हाँ, अगर आपको एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन करनी है, आपको इंजीनियरिंग चाहिए, उसके लिए आपको एक्सपर्टाइज चाहिए, और आपको ऑब्वियसली इसमें इकोलॉजिकल और सोशल कंसर्न्स भी रेज होते हैं. सो 2 and 3 इज द राइट आंसर. In which of the following areas of India geothermal energy sources have not been found? गोदवारा डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालयस, वेस्ट कोस्ट. जियोथर्मल एनर्जी कहाँ पे नहीं पाई जाती है? गंगा डेल्टा. Other than Jatropha Corcus, why is Pongamia pinnata also considered a good option for the procedure of biodiesel in India? Pongamia grows naturally in most of the arid regions of India. The seeds of Pongamia are rich in lipid content, of which nearly half of is aloic acid. तो जट्रोपा के बगैर पोंगेमिया को भी एज अ गुड ऑप्शन क्यों माना जाता है बायोडीजल के लिए? Only 1, only 2, 1 and 2, neither 1 nor 2. And yes, the right answer is both 1 and 2. ठीक है. Okay. What is the importance of bioasphalt? Unlike traditional asphalt, bioasphalt is not based on fossil fuels. Bioasphalt can be made from non-renewable resources. Bioasphalt can be made from non-organic waste materials. It is eco-friendly to use bioasphalt for surfacing of the roads. So, which one is correct? 1, 2 and 3, 1, 3 and 4, 2 and 4, 1, 2, 3 and 4. So, the right answer is 1, 3 and 4. Unlike traditional asphalt, bioasphalt is not based on fossil fuels. Bioasphalt can be made from non-renewable resources, and it is eco-friendly to use bioasphalt for surfacing of the roads. Match list 1 with second. Minerals, solar energy, biogas, deforestation.
तो हमें बताना है रेनफॉल के साथ कौन सा एसोसिएटेड मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जॉस्टिबल कौन सा है, इनएग्जॉस्टिबल कौन सा है। ऑब्वियसली इफेक्ट किस पे पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन से रेनफॉल पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम पेड़ काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो जाएगा। मिनरल्स जो है ना, मिनरल्स ख़त्म होते हैं, एग्जॉस्टिबल है ना, वो ख़त्म होते हैं। सोलर एनर्जी इनएग्जॉस्टिबल, ये ख़त्म नहीं होगा। तो बायोगैस जो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उसका ये बनेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द राइट। सो मिनरल्स के लिए आएगा ये एग्जॉस्ट हो जाएगा तो 3, सोलर एनर्जी के लिए इनएग्जॉस्टिबल 4, बायोगैस के लिए 2, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, डिफॉरेस्टेशन से रेनफॉल पे असर पड़ेगा 3, 4, 2, 1। गॉट इट? ओके। सो इस पीरियड में इस टॉपिक में इतने ही क्वेश्चंस हैं, और बाकी हमने जो प्रीवियस सेशंस किए हैं, बहुत बड़े बड़े सेशंस हैं, उसमें 150 क्वेश्चंस हमने किए हैं। उसका प्लेलिस्ट बना के है इकोलॉजी एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी का, हमारी यूट्यूब चैनल पे आप वो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे जो है इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसमें क्वेश्चंस हैं। सो आई थॉट कि ये जो टॉपिक है ये भी आपको काम आ जाएगा, एंड दैट्स व्हाई आई मेड दिस सेशन। एंड इंशाल्लाह और भी हम क्वेश्चंस करेंगे इकोलॉजी एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।